everyone on another episode of Awaaz-e-Haqiqat, which translates to the voice of truth. I'm your host, Chris Malika Bhadra, and depending on whichever part of the world you're listening to me from, I'm going to be talking about multiple sclerosis and why don't we talk enough about it? Why do we still have a lot of stigma and hesitance and reluctance about this issue? And joining me is a very special guest all the way from Lahore, Pakistan. I'm joined by Afroz Saeed. Afroz is the president of the Society for Multiple Sclerosis Patients in Pakistan, which also abbreviates to SMSPP, the only society working for the welfare of MS patients in Pakistan. She was diagnosed with MS in January 2011 and took the initiative to start a non-profit organization to help other patients live a better life with MS. Afroz's medical problems actually started in 2009, and for 2 long years, she was an undiagnosed case until she was recommended to go forward with an MRI by her neurologist. After her diagnosis, the real journey started, which was the battle against MS. The initial years after her diagnosis were very challenging, and she had to go through 3 major relapses, which affected her lower and upper limbs and left her wheelchair-bound for several days. Although her family was very supportive throughout, coming to terms with her diagnosis was still the hardest part. It took Afroz 3 long years to understand her disease, identify the triggering factors, and learn to live a better life with multiple sclerosis. MS is a serious neurological disorder that affects the central nervous system, as many of us would already be aware of. It is an autoimmune disease in which the immune system attacks the central nervous system of the body, causing demyelinating scars in the brain and spinal cord. Without proper treatment and repeated relapses, also known as MS attack, the body is robbed of its ability to function properly, leading to disability and mobility issues as well. The patient starts using disability aids, such as a stick or walker, and may even have to use a wheelchair or become bedbound if the disease is left untreated. During the early years of Afroz's diagnosis, she also made an effort to meet other patients and understand the conditions they were living in, how they were coping with this disease, the steps they were taking given the limited means available at that time. It was at this time that she decided to register and establish a non-profit by the name Society for Multiple Sclerosis Patients in Pakistan. This society was established with 3 main objectives. 1, to provide a platform to MS patients in Pakistan where they can meet other patients, talk to each other about their disease and understand it better. 2, to create an awareness about MS in Pakistan. And 3, support patients who cannot afford treatment with their monthly medical supply. On that note, a very, very good afternoon. Thank you for joining me. How are you doing tonight? Thank you, Chris. I'm doing great. Hope you're doing great too. And thank you so much for having me on your podcast. It's been a pleasure. Yeah. The pleasure is mine, of course, because you giving me your time. So pleasure is completely mine. And Thank first you. and foremost, thank you for the amazing work you're doing. That's amazing. Hats off. As I started the conversation, of course, and also to my listeners, we'll be having this conversation in English and Urdu or Hindi, which is almost similar. So please feel free to listen to it and share it to your friends and family, because what we're going to be discussing is very, very important. Also, of course, coming back to what I started the conversation is that we don't see a lot of discussion or awareness happening around MS, right? Why is this problem? Why are we not talking about this how much as it is required in the 21st century? Yeah, the first thing to understand about multiple sclerosis is, as you've already given an overview, that this disease causes it is a leading cause of disability in young people. It is usually diagnosed in patients who are between the years of 20 and 40 years. So this is a very young age, and in most cases, females are twice more likely to be affected by MS as compared to males. So, and according to statistics here in Pakistan, MS affects around 4 to 5 people in a population of 100,000 individuals, which is not a very common disease, but it is not, we can't say that it is rare either. So people are still trying to, there's a lot of work that needs to be done to create awareness about multiple sclerosis. So people understand what this disease is and they start
discussing it and talking about it. Right. This is not as common as other ailments like hypertension, diabetes, and rheumatoid arthritis. That is why it is not a commonly talked about issue. Luckily, our society is the only society raising awareness about multiple sclerosis in Pakistan. There is also a Society of Neurology based in Karachi. And then we have a Let's Beat MS that was started, an initiative taken by Roche Pharmaceutical. So some talk you will see, especially around World MS Day, you will see radio interviews, TV interviews going around. Okay. The next thing to understand about multiple sclerosis is that it is an invisible illness. It is usually the person, anybody who would see me, they would say that she looks completely normal, and that's the major problem with MS, is that until and unless the person actually starts becoming disabled, the other person cannot comprehend or understand what this patient might be going through. Some of the common symptoms of MS are vision-related problems, numbness and tingling. So obviously, the other person cannot view whatever the patient is going through. But these things, they are very challenging for the patient, and slowly and gradually they can advance to a stage causing mobility disability in the patient. Right. Thank you. Okay. Another challenge, I think you asked about the challenges as well. Yes. The biggest challenge, especially for females, is that they don't come forward to talking about their disease. This is not true for male patients, of course, but the females, especially, they tend to hide their medical issues from the people around them. Even me, for me, it took me 3 long years to come to terms with my disease and basically be confident enough to talk openly about it with other people. Obviously, the initial years were very depressing and they were very hard for me. That's true for every patient as well. And the patient is unable to understand what they're going through, what changes their body is going through. So they really need to boost up their confidence to be able to speak openly about the disease. Absolutely. Excuse me, you highlighted, and even I had asked you this, that women often face more reluctance and they're often more hesitant to talk about their issues, right? In our still conservative societies. And I would request if you can answer this in both English and Urdu, that why is our society still a bit biased towards that a woman can't open up, a woman can't be as free as much maybe a man can, especially when it comes to these kind of diseases? Or are we slowly inching towards equal society where a woman, if she says that, okay, मुझ में ये problem है, and she's still accepted as normally as maybe someone other would be? ये हमारी सोसाइटी में ना ये टेबूज हैं, जो स्पेशली अगर कोई बीमार हो जाता है ना, कहते हैं हाँ उसको तो ये बीमारी हो गई है, इस तरह करके ना, which is basically very, very disappointing and disheartening for the patient itself. तो usually हमारे साथ ये होता है, because my society is leading, we are in connection with more than 4,000 patients from all over Pakistan, from different smaller cities, जिस तरह गुजरांवाला, गुजरात, दूर के शहर, जंग, चिन्योट, इस तरह के शहरों से हमें पेशेंट्स की कॉल्स आती है. अब जो स्पेशली फीमेल पेशेंट्स होती हैं, उनमें ये होता है कि द पेशेंट हरसेल्फ नेवर कॉल्स द सोसाइटी. ठीक है, यूजुअली इट्स हर मदर और फादर और ब्रदर और सिस्टर, समवन एल्डर, क्योंकि ये MS की जो डिजीज है ये यंग एज में डायग्नोज होती है. इन मेरे 2022 में आई वाज डायग्नोज्ड विद MS व्हेन आई वाज 28 इयर्स ओल्ड. तो यूजुअली जो हमारी सोसाइटी में 20-25 साल की लड़कियां होती हैं, वो तो अभी अपनी एजुकेशन कर रही होती हैं, एजुकेशन कंप्लीट कर रही होती हैं, तो उनको फिर समझ भी नहीं आ रही होती कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद अस. तो वो फिर they don't come forward, they don't openly talk about their disease. ठीक है. और कुछ
मेरे साथ भी यही हुआ, बहुत से ऐसे पेशेंट्स के साथ यही होता है कि उनको लगता है, क्योंकि उन्होंने पहली दफा इस डिजीज का नाम सुनते हैं, जब उनको ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं तो वो दे ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं। ब्लड टेस्ट से तो खैर कुछ भी नहीं आता। फिर वो इवेंचुअली जब न्यूरोलॉजिस्ट पे पहुंचते हैं तो न्यूरोलॉजिस्ट उनको बताता है कि आपने एमआरआई करानी है। तो एमआरआई वो कराते हैं तो फिर वो उसमें एमएस का डायग्नोसिस निकल आता है। तो जी। वो बेसिकली द नेम इटसेल्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने इस बीमारी का नाम ही नहीं सुना होता। तो ये जो है, ये भी काफी चैलेंज इटसेल्फ है कि जब मुझे भी डायग्नोसिस हुआ था तो मुझे लगा था कि आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड जिसको ये बीमारी। मुझे नहीं पता था कि हमारे इर्द गिर्द और कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ये बीमारी थी। इवन हमारे जो हमारे ये जो हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं ईमान अली, शी वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इवन उनके थोड़े से एक दो प्रोग्राम्स के अंदर शी ओपनड अप अबाउट हर डिजीज, लेकिन अब वो शी हैज आल्सो नॉट टॉक्ड अबाउट मच ऑन मीडिया स्पेशली। तो इसीलिए जो है ना, अवेयरनेस ही नहीं है हमारी सोसाइटी में अबाउट दिस डिजीज, तो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिस इज एन इनविजिबल इलनेस, तो इसको समझने में भी देर लग जाती है इवन फॉर द पेशेंट, और पेशेंट की फैमिलीज को तो उससे ज्यादा देर लगती है। एग्जैक्टली, थैंक यू अफरोज। ऑलराइट, ये तो थोड़ा वो सोसाइटल स्टिग्मा की तरफ हम बात कर रहे थे, बट नाउ ऑन अ मेडिकल साइड ऑफ थिंग्स अफरोज, यू हैव बीन थ्रू योर जर्नी, राइट? तो व्हाट आर सम ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग कि somebody might be having MS? जी, यूजुअली पेशेंट्स के अंदर ना जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, ऑब्वियसली वो सडन अटैक नहीं होता। दिस इज अ स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज। ठीक है, इनिशियली विजन रिलेटेड प्रॉब्लम से शुरू हो जाता है या नमनेस एंड टिंगलेंस से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी पेशेंट्स ये समझते हैं कि शायद मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, हेजी एंड ब्लरी विजन होना शुरू हो जाता है, और वो रीडेबिलिटी में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। टेक्स्ट रीडेबल नहीं रहता किताब से या कंप्यूटर की स्क्रीन से या मोबाइल की स्क्रीन से ठीक तरह नजर नहीं आता। ठीक है, फिर कुछ कुछ पेशेंट्स में अब ये भी प्रॉब्लम है कि हर पेशेंट की ऑब्वियसली सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनकी सिवियरिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में निस्टैग्मस होना शुरू हो जाता है, विच इज आंखें जो हैं वो थोड़ी सी फोकस नहीं कर पाती, स्ट्रेट नहीं देख पाती। ठीक है, फिर उनकी कलर परसेप्शन लूज होनी शुरू हो जाती है, उनको रंग सही नहीं नजर आते। ठीक है, तो फिर उसी तरह ही जो एक और इनिशियल सिम्टम है जो एमएस पेशेंट्स में देखा गया है, वो है लॉस ऑफ बैलेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब मेरे साथ भी ये होता था, मेरी भी इनिशियल सिम्टम्स विजन से ही शुरू हुई थी, और फिर उसके लिए स्टीरॉयड थेरेपी होती है। जब स्टीरॉयड्स बंद करने पे आते हैं तो फिर दूसरे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उसमें फिर मेरा बैलेंस लूज होना शुरू हो जाता था। जब मैं उठ के चलने लगती थी तो मैं लड़खड़ा के गिर जाती थी। ठीक है, तो मोबिलिटी इश्यूज, एकदम उठ के चला नहीं जाता एकदम से उठ के। और फिर पेशेंट जो है ना, वो उनका कंट्रोल भी खत्म होना शुरू हो जाता है, स्पेशली टांगों पे, लोअर लिम्स पे। जो अगर वो उठ के चलना चाह रहे हैं तो वो बॉडी वो नहीं कर पाती जो वो करना चाह रही है। ठीक है, तो ये इस तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब वो पेशेंट को ये भी समझ नहीं आती कि ये कमजोरी है मुझ में या क्या है, या ये उनके ब्रेन के अंदर जो है वो स्कारिंग होना शुरू हो रही है, और वो दिस इज एक्चुअली एमएस का इनिशियल सिम्टम्स हो रहे हैं। तो दिस इज एमएस को हम ये भी कह सकते हैं, एक तो इनविजिबल इलनेस है, एक ये मिस्ट्री डिजीज है। ठीक है, तो कुछ समझ भी नहीं आती कि ये क्या फीलिंग्स हो रही हैं पेशेंट को। फिर लॉस ऑफ सेंसेशन में ये होता है कि आपको स्पिन्स एंड नीडल्स भी होती हैं, और फिर सुइयां चुभना और चूंटियां और रेंगना भी फीलिंग होती है, क्रीपी फीलिंग ऑन योर आर्म्स एंड लेग्स, जैसे कोई चूंटियां चल रही हैं, स्पाइडर्स क्रॉलिंग ऑन योर स्किन। ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से ये होता है कि ठंडा गर्म की फीलिंग नहीं आती, तो पेशेंट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड।
Right. लॉस ऑफ सेंसेशन से, लॉस ऑफ बैलेंस से, तो पेशेंट्स आर मोर, दे गेट मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। ठीक है, Hmm. वो उठे हैं, उठने चलने के लिए उठे हैं तो गिर गए हैं, तो दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। और स्पेशली जब ठंडा गर्म की फीलिंग नहीं आती, तो यू कैन बेसिकली टच समथिंग वेरी हार्ड, Hmm. वेरी हॉट, एंड देन यू कैन बर्न योरसेल्फ। Right. ठीक है, Right. तो इस तरह की इंजरीज एंड एक्सीडेंट्स होने का भी चांस ज्यादा बन जाते हैं। बिल्कुल। um जो आपने मुझे symptoms बताया, of course these are like very hard to kind of like take on, like even as a listener I can imagine what you must have gone through, right? But if it is जी happening with someone, जी and I would also request you to answer this question both in English and Urdu, is how does a patient, or how did you take care of your mental health, like on a difficult day, मान लें कि आपके symptoms aggravate हो रहे हैं, how do you control your mental sanity? जी, ऑब्वियसली ये भी काफ़ी चैलेंजिंग ही रहता है थ्रू आउट द जर्नी ऑफ अ पेशेंट, थ्रू Hmm. आउट द एमएस जर्नी ऑफ अ पेशेंट। डिप्रेशन तो सबसे ज़्यादा जो है ना सिग्निफिकेंट होता है इन एमएस पेशेंट्स। Right. ठीक है, फिर एक कंफ्यूजन भी होती है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और पता नहीं ये मेरे परमानेंट है या मैं ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। Hmm. ठीक है, और द सेकंड थिंग इज कि पेशेंट तो कंफ्यूजन में होता ही है कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी। जो अगर उनको सपोर्ट ना मिले फ्रॉम देयर फैमिली, तो वो Hmm. उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। अब बीइंग अ सोसाइटी, इधर फीमेल्स आर एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एट होम। ठीक है, Hmm. घर के काम काज करना, बर्तन धोने, इवन लॉन्ड्री करना, ये छोटे मोटे काम। तो जब एक पेशेंट में इतनी, क्योंकि इसमें क्रॉनिक फटीग फटीग तो बहुत ज़्यादा होती है, क्रॉनिक फटीग होती है, उठने की हिम्मत भी नहीं होती पेशेंट में कि Hmm. उठ के काम किचन तक भी चले जाएं और कोई काम कर लें। ठीक Hmm. है, तो इवन टेकिंग अ बाथ, शावर लेना भी जो है ना, वो भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। Right. अक्सर मेरे साथ भी यही होता था कि मैं शावर लेके मैं आई हैड टू कम एंड टेक रेस्ट। मैं 10-15 मिनट के लिए सो जाती थी, Hmm. इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इवन डूइंग नॉर्मल थिंग एज टेकिंग अ शावर। Yeah. तो ये जो है इस तरह के, फिर अगर फैमिलीज जो हैं वो अगर इस तरह के बात कह दे कि ये तो ड्रामा कर रही है या ये तो एक्टिंग कर रही है, ये Hmm. बिल्कुल ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये जो है ये इट इज़ वेरी Very वेरी demotivating. Yeah. सैडनिंग फॉर द पेशेंट। Right. और ये उनके मेंटल हेल्थ पे और काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको मेंटल इश्यूज होना शुरू हो गए थे आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद एमएस, क्योंकि उनकी फैमिलीज उन्हें सपोर्ट नहीं करती। अब एक और बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में कि मदर स्पेशली जो है, मसला तो नहीं कहूँगी, उनको यही इशू होता है कि हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी, विल शी एबल टू मैरी एंड स्टार्ट अ फैमिली Right. इफ शी हैज बीन डायग्नोज्ड विद एमएस। Hmm. ठीक है, तो फिर अगर शादी हो भी गई, तो वो घर के काम कर कैसे कर? लेगी, घर को Right. संभाल लेगी, बच्चे संभाल लेगी, हस्बैंड को संभाल लेगी, देख लेगी सब कुछ। काफी सैडनिंग बात ये है कि हमारी सोसाइटी जितना इतनी एजुकेशन नहीं है, Hmm. और लोगों के पास ना, टू बी ऑनेस्ट, पेशेंस भी नहीं है। ठीक है, Right. टू कि वो किसी इल और या बीमार बंदे के साथ एक लाइफ गुजार सके। ठीक Hmm. है, तो वो बहुत से सैडनिंग केसेस ऐसे भी हुए हैं कि पेरेंट्स ने छुपा के बच्ची की शादी कर दी, और फिर उसके बाद वो जो है ना, वो एक हफ्ते बाद ही वो डाइवोर्स लेके घर आ गई। दिस इज रियली रियली सैडनिंग। और तो डिप्रेशन जो है ना, ये तो बहुत ही मेजर मसला है। Hmm. इसके Hmm. अलावा जो है, जो सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स जो नज़र नहीं आते या समझ भी नहीं आते, वो एमएस के साथ हैं। ब्लैडर एंड बॉवल डिसफंक्शन है, Right. स्पीच प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन्स एंड हेडेक्स कांस्टेंट होती रहती हैं। इसके अलावा भी और हर पेशेंट के सिम्टम्स भी वेरी करते हैं, ये सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं हो जाते पेशेंट को एक ही वक्त पे। Hmm. ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ देयर डिजीज, ड्यूरिंग द Hmm. स्पैन ऑफ देयर लाइफ, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से उनको वो एक्सपीरियंस करने पड़ सकते हैं। Hmm. ठीक Hmm. है, तो एक चीज में एमएस पेशेंट्स को, या अगर ये जो मैंने सारे सिम्टम्स बताए हैं, अगर किसी पेशेंट को
लग रहा है कि हाँ मुझे ये सारे या कुछ इनमें से सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपने जो है न्यूरोलॉजिस्ट पे जाना है, न्यूरो फिजिशियन पे जाना है। ये भी लैक ऑफ एजुकेशन है। पेशेंट्स जो हैं वो जनरल फिजिशियन पे चले जी। जाते हैं या किसी फैमिली फिजिशियन पे चले जाते हैं। हम्म। उनको नहीं पता होता कि हमने इस बीमारी के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन पे जाना है। ठीक है। और या फिर वो न्यूरो सर्जन पे चले जाते हैं। देखिए ये सर्जरी का काम नहीं है, सर्जन का काम नहीं है, आपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन पे जाना है। ठीक है। और कोई भी ब्लड टेस्ट जो है वो एमएस को डायग्नोज नहीं करेगा। ठीक है। उसके लिए आपने एमआरआई ही करवानी है ब्रेन की और सर्वाइकल स्पाइन की। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जी। उसमें अगर आपके डीमाइलिनेटिंग स्कार्स आए हैं तो इट मीन्स कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ठीक है। कुछ पेशेंट्स को फिर डॉक्टर जो है अगर उनका क्लियर डायग्नोसिस नहीं आता तो वो कहते हैं कि आप लंबर पंक्चर या एलपी करवा लें अपना। ठीक है। जो जिसमें स्पाइनल सेरिब्रो फ्लूइड आपकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं। ठीक है। उस पे वो टेस्ट करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी बीमारी है। ठीक राइट। है। तो ये सब चीजें भी पेशेंट बीइंग अ पेशेंट और बीइंग एन अनडायग्नोज्ड केस ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जिसको भी इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं ये सब उनको पता होना चाहिए। Absolutely. थोड़ी देर पहले अफरोज यू मेंशन दैट समटाइम्स आवर ओन मदर्स आर वेरी वरिड कि हमारी शादी जी नहीं होगी, बेटियों की जी हाउ। अब you know the kind of awareness and education is still very low, right? तो कोई ऐसी जी जी फैमिली जहाँ पे एडुकेट मतलब जिनको समझ ही नहीं है हाउ टू काइंड ऑफ इवन अगर उनको एम्पैथी भी दिखानी है टू द पेशेंट दे डोंट नो हाउ टू जी अप्रोच द कॉन्वर्सेशन। तो एज जी अ एज एन एग्जिस्टिंग पेशेंट एज अ फाइटर फॉर दिस अप्रोच आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मान ली एक माँ है शी wants to have जी that conversation लेकिन उनको समझ नहीं आ रही how to start the conversation, how would you suggest her to start that with her child? जी ये इसमें भी ना दो दो पॉइंट्स हैं। एक तो जी। ये है कि कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं इन द सोसाइटी कि पेशेंट्स को ना वो दे कीप द फैमिली कीप्स द पेशेंट इन द डार्क कि भाई हम्म। तुम लोग को तुम्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है। हम्म। हालांकि डायग्नोसिस हो गया है। ठीक है। तो पेशेंट को डॉक्टर कह देता है कि आपको हम्म। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। हम्म। लेकिन वो घर आके वो उसको बता देते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है तुम खुद ही ठीक हो जाओगे। ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो है ना दे डोंट लर्न अबाउट देयर डिजीज, दे हम्म। डोंट ओपन अबाउट देयर डिजीज क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही थी उनके साथ क्या है। जी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आई थिंक आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन। The question is how to start that conversation at home. वो यही है कि यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि आप बच्ची से बात तो खुद ही करनी है वरना यू कैन कांटेक्ट द सपोर्ट ग्रुप्स लाइक आवर सोसाइटी। ठीक Yeah. है। हम लोग उनको बेहतर गाइड कर देते हैं कि इस बीमारी में क्या क्या पेशेंट को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। और किस तरह उसको हैंडल करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ वो पेशेंट यूज कर सकता है। ऑब्वियसली जब वो उसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट होंगे तो फिर ही उन्हें पता चल जाएगा ना Exactly. कि ये बीमारी क्या है और इसके साथ किस तरह फाइट करना है और एक Yeah. नॉर्मल लाइफ किस तरह गुजारनी है। बिल्कुल। हमारा ये बेसिकली आई क्रिएटेड दिस सोसाइटी इसी एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ कि हम पेशेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दें कि वो दे कैन कम फॉरवर्ड एंड ओपनली टॉक अबाउट द डिजीज और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और अब हम जो पेशेंट मीटअप्स रखते हैं या सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हैं उसमें भी इंकरेज पेशेंट्स टू कम फॉरवर्ड और अपनी फैमिली मेंबर्स को लेके आए और उधर हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि भाई ये बीमारी ऐसी है तो इस बीमारी में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लेकिन यू हैव टू सपोर्ट द पेशेंट एंड यू हैव टू हेल्प देम लिव अ बेटर एंड नॉर्मल लाइफ। ठीक है। और जो अगर एमएस हो भी गया है तो उसके साथ इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। तो यू विल हैव टू लर्न टू लिव क्योंकि एमएस का अभी तक देर इज नो नोन कॉज एंड नो नोन क्योर ऑफ एमएस। Okay. ठीक है। तो वन इफ यू आर डायग्नोज्ड विद एमएस तो यू हैव टू लिव योर एंटायर लाइफ विद दिस डिजीज। तो यू हैव टू कम टू टर्म्स विद दिस Yeah. डिजीज और एक्सेप्टेंस जो है ना वो इसके अंदर इट इज द की फैक्टर। ठीक है। विदाउट एक्सेप्टेंस जो है मुझे भी 3 साल लगे थे टू बेसिकली एक्सेप्ट
कि हाँ भाई अब मुझे ये बीमारी हो गई है, क्योंकि आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर एट द टाइम, 28 years की थी, आई हैड completed माई स्टडीज एंड आई वॉज डूइंग 2 to 3 जॉब्स, फ्रीलांसर भी थी मैं। तो उसके बाद जब मेरी विजन लॉस होना शुरू हो गया, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि अब मैंने क्या करना है, कि मुझे तो यही लग रहा था कि माई लाइफ हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल, और अब व्हाट इज इन द फ्यूचर फॉर मी। Absolutely. Thank you, Afroz. Very brave of you, I have to say that. Um, एक आखिरी तो नहीं खैर, बट ऑन अ मेडिकल पर्सपेक्टिव अफरोज की हमारी कंट्रीज में हाउ अफोर्डेबल और एसेसिबल इज मेडिकल हेल्प व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस? जी, दैट्स द सैड पार्ट, बिकॉज एक कंट्री लाइक पाकिस्तान, इधर मेडिकल फैसिलिटीज ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अनलाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, कनाडा एंड यूएस के अंदर, यूके के अंदर पेशेंट को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज मिलती राइट। हैं, लेकिन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ऊपर से जो हमारे इधर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो मेडिकल जो even according to the NERF, the Parks Neurology Association of Pakistan, there are hardly 300 neurologists in all over Pakistan. So for a population of Yeah. for such a huge population, that's just peanuts. तो Nothing. अगर neurologists ही नहीं है, और उनमें से जो especially the ones who understand and specialize in multiple sclerosis, वो तो इससे भी कम है, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग है, इसको हमें इस पे भी काम करना है कि न्यूरोलॉजिस्ट भी हों और मेडिकल फैसिलिटीज भी हों, और एमआरआई की अवेलेबिलिटी भी जो है वो इतनी एक्सेसिबल नहीं है टू पेशेंट, स्पेशली इन स्मॉलर विलेजेस, और जो हमारे छोटे गांव हैं उनमें तो पेशेंट को उधर दवाइयाँ भी नहीं मिलती, उधर वो फैसिलिटीज भी नहीं होती, उधर वो मशीनें, एमआरआई मशीन्स भी नहीं होती। तो अक्सर हमारे जो दूर दराज के गाँव के पेशेंट्स होते हैं, उनको बड़े शहर में आना पड़ता है, लाहौर, जिस तरह भावलपुर वाले पेशेंट हैं उनको लाहौर आना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। इसी तरह ही जो इस्लामाबाद की टेरिटरी के इर्द गिर्द होते हैं, उनको इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाना पड़ता है। तो ये भी इश्यूज हैं पाकिस्तान में कि मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज आर इनएक्सेसिबल, एंड जो एक्सेस अब ये रिसेंटली अब हमारे साथ ये हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये हमने देखा है कि डॉलर का रेट भी एक तो इतना हाईली इन्फ्लेट हो गया, और फिर इंपोर्ट्स के ऊपर भी बैन लग गया। तो जो मेडिसिन पहले इजीली अफोर्ड आ जाती थी पाकिस्तान, वो भी उनकी रीच भी जो है ना वो खत्म हो गई है, ठीक है। इवन ये तो और जो डीएनटीज हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट्स, जो बाहर तो अगर इफ वी रीड आप on the Facebook groups of MS support groups outside in the US और कनाडा, तो वहाँ पे FDA अप्रूव्ड ड्रग्स जो हैं वो हर कुछ महीनों बाद वो कोई ना कोई FDA अप्रूव्ड ड्रग आ जाते हैं, लेकिन उनकी एक्सेसिबिलिटी हेयर इन पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट नील, ठीक है। इधर और वो अगर इधर 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं जो डीएनटीज, डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान में लॉन्च की हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, लेकिन वो दे आर हाईली हाईली कॉस्टली। अब एक इंजेक्शन जो है जो साल में 2 दफा लगता है, ठीक है, वो 5-5.5 लाख का एक इंजेक्शन है। दैट्स 1 million to 1.2 million एनुअल खर्चा, ठीक है। 10 से 12 लाख का खर्चा है सालाना। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सन जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट्स जो हैं दे टर्न टू द गवर्नमेंट फॉर सपोर्ट। इधर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बैतुल माल है एंड सोशल वेलफेयर है, जो पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और पेशेंट्स को इसकी भी एजुकेशन नहीं है कि वो इनको अप्रोच कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और फिर हमारी सोसाइटी इतनी महंगे ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाती, ठीक है, बिकॉज हमें भी फंडिंग का इशू होता है, वी हैव लिमिटेड फंडिंग, राइट। तो फिर लेकिन हम मंथली मेडिसिन, अब हम 20 to 22 पेशेंट्स की हम मंथली मेडिसिन जो हैं वो उनको भिजवाते रहते हैं, एवरी मंथ भेजते हैं। अगर आप हमारा फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी मंथ हम मेडिसिन जो हैं वो अरेंज करके फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पेशेंट्स को हम भेजते हैं। थैंक यू अफरोज। एक लास्ट सवाल, आई मीन
we can't wrap up these conversations. ऐसे conversations होते रहने चाहिए, but आज के लिए I'm mindful of time. If what would be your message to our listeners? जी मैसेज वो यही जिस तरह मैंने पहले बताया है कि कमिंग टू टर्म्स विद योर डायग्नोसिस इज द हार्डेस्ट पार्ट फॉर मेनी पेशेंट्स। लेकिन अगर आपको एमएस हो गया है तो द थिंग बीइंग एन एमएस पेशेंट माई सेल्फ, तो मैं यही कहूँगी बाकी एमएस पेशेंट्स को कि एमएस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कुछ काम हैं जो एमएस की वजह से नहीं कर सकते, तो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, स्टिल डू। ठीक है, तो कीप योर स्पिरिट्स हाई और don't let MS control you. You need to take charge and move on with your life. Thank you, Afroz. And if someone wants to connect with you, where can we find you on social media? जी, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, that's www.smspp.org.pk। ठीक है, फेसबुक हैंडल है हमारा www.facebook.com/smspakistan। और इंस्टाग्राम हैंडल भी है हमारा instagram.com/smspakistan.pakistan। Afroz, thank you. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. And again, hats off for what you've done in your life और जो आप बाकियों के लिए कर रही हैं. It's not easy. On to the listeners, if you've heard me for the first time, if you've heard us for the first time, I really hope that you had a lot to take away from Afroz's journey. Please talk about multiple sclerosis as much as you can, because जिस तरीके से awareness बढ़ेगी, उसी तरीके से affordability बढ़ेगी when it comes to medical research and medical medication for the patients. And please don't keep this as a stigmatized issue. It's not the patient's fault. It can occur to anyone. या आप में से किसी पे भी हमारे साथ हो सकता है. And if you heard me for a while, I really hope you like the content that I put on the table. If you've got any thoughts or comments, please write to me on awazehaqiqat@gmail.com, or you can reach out on Facebook, Instagram, and Gmail as well as Awaze Haqiqat. On that note, Afroz, thank you so much for joining me, and I wish you all the best. You're welcome, Chris. Thank you so much for having me on your show. Thank you.